Welcome to Sharadvi More English School online lecture. Good morning, student. Yesterday I have started the evolution of the stars. Evolution of the star. How the evolution of star takes place. Okay, let's continue from there. Evolution of star means change in its property with time, resulting in its passing through different stages. We have seen that property of the sun have not changed in the past 4.5 billion years. The star evolves very slowly from for most of their lifetime. As stars are continuously emitting the energy, their energy is constantly decreasing. Okay, so what we have seen, the स्टार सन जो सन स्टार है वो 4.5 बिलियन ईयर से उसमें चेंजेस बहुत ही कम हुआ है और ना के बराबर हुआ है। ओके, एंड जो स्टार्स होते हैं वो कंटिन्यूसली हीट और लाइट एनर्जी इवॉल्व करते हैं। बिकॉज ऑफ दैट द एनर्जी इन देम डिक्रीजेस। तो एनर्जी जो उनके अंदर रहती है वो क्या होती है, स्लोली स्लोली डिक्रीज होती है। फॉर देयर स्टेबिलिटी to remain intact for maintaining a balance between the gas pressure and gravitational force, it is necessary that temperature remain constant. For temperature to remain constant, energy must be generated inside the star. This generation of energy occurs. This generation of energy occurs because of burning of the fuel at the center of the star. The reason for evolution of star is burning of and therefore the decrease in amount of the fuel in their center. जो इवोल्यूशन ऑफ स्टार का जो मेन रीज़न है वो क्या है, बर्निंग ऑफ द फ्यूल। अब उसमें फ्यूल क्या होता है, ये हीलियम एंड हाइड्रोजन। जो हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस इज द इनफ्लेमेबल गैस। तो व्हाट हैपेंस व्हेन द हाइड्रोजन गैस रिएक्ट विद द helium, there is a burning, and because of burning the fuel means amount of the hydrogen decreases. The reason of evolution of star is what? That's why burning and therefore decrease in the amount of fuel in their center. When the fuel in the center finishes, जब उसके फ्यूल सेंटर में क्या होंगे, फिनिश्ड हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, द एनर्जी जनरेशन स्टॉप्स। तो एनर्जी का जो जनरेशन है वो क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। एज ए रिजल्ट द टेम्परेचर ऑफ स्टार start decreasing. Due to decrease in temperature, the gas pressure decreases and the balance between the gas pressure and gravitational forces cannot be maintained. So when fuel finishes, the temperature of the star decreases, and when temperature of a star decreases, the gas pressure decreases and the balance between the pressures of the gas and gravitational forces is not maintained. As a result of it, the star stops emitting the light. As the gravitational force is now higher than the gas pressure, star start contracting. Star start contracting. तो उसके बाद क्या हो जाता है, स्टार कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाता है जब गैस प्रेशर क्या हो जाता है, कम, एंड ग्रेविटेशनल फोर्स मोर। This causes another fuel to start burning. Example, when hydrogen at the center and energy generation start again. The star start contracting. This causes, जब उसमें क्या होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं, फिर उसके बाद में जो फ्यूल हाइड्रोजन होता है वो स्टार्ट हो जाता है बर्निंग, एंड व्हेन हाइड्रोजन एट द सेंटर इज फिनिशेस, हीलियम स्टार्ट अंडरगोइंग फ्यूजन एंड एनर्जी जनरेशन स्टार्ट अगेन। और जब पूरी तरह से हाइड्रोजन फिनिश्ड हो जाता है तो हीलियम, जो हीलियम एटम है, हीलियम एलिमेंट है, वो फ्यूजन रिएक्शन स्टार्ट करता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट एनर्जी जनरेशन अगेन स्टार्ट्स।
How many fuels will be used depend on the mass of the stars. हाउ मैनी फ्यूल्स विल बी यूज्ड, कितने टाइप के फ्यूल्स वो स्टार यूज करेगा एनर्जी जनरेशन के लिए, वो उसके मास के ऊपर डिपेंड करता है. हाइयर द मास ऑफ द स्टार, हाइयर इज द नंबर ऑफ द फ्यूल यूज्ड. अब जितना मास ज़्यादा होगा उस स्टार का उतना ही ज़्यादा फ्यूल वो यूज करेगा. ड्यूरिंग दिस ए लॉट ऑफ चेंजेस ऑकर इन द स्टार्स. अब इसी पीरियड में, during this period, there is lot of changes in a star. As a number of processes occurs inside the star, it sometime contract and expand at other time, and star goes through the different stages. अब इसी पीरियड में sometimes it contract and sometimes it expand. When all the possible fuels are exhausted, the energy generation finally stops and temperature of star start decreasing. And when all type of the fuels completely finish, then it again start contracting. The balance between the gravitational force and the gas pressure cannot be maintained. Let us now see how end stage of the stars are. अब इसके बाद में क्या हो गया, गैस प्रेशर लो हो गया और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो गया, ज़्यादा हो गया. एंड बिकॉज देयर इज अ डिसबैलेंस बिटवीन दीज टू फोर्सेस, एंड बिकॉज ऑफ दैट द एंड स्टेजेस ऑफ द स्टार बिगिंस. इसके बाद में क्या हो जाता है, उनका एज जो होता है वो उनका जो एंड का स्टेज स्टार्ट हो जाता है. एंड स्टेजेस ऑफ द स्टार. हाइयर द मास ऑफ स्टार, फास्टर इज इट्स रेट ऑफ इवोल्यूशन. अब जितना ज़्यादा मास होगा, हाइयर द मास ऑफ स्टार फास्टर इज द रेट ऑफ इवोल्यूशन. तो अगर मास ज़्यादा है तो उतना ही फास्ट रेट से उसका इवोल्यूशन भी होता है. The different stages during the evolution of a star, which is the path of evolution of the star, also depend on its mass. How does the evolution finally stops? अब किस तरह से evolution finally stop हो जाता है? We have seen that when the energy generation stops, the temperature decreases, causing the gas pressure to decrease. अभी क्या लर्न किया हम लोगों ने कि जब एनर्जी जनरेशन स्टॉप हो जाता है तो टेम्परेचर उसका क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है. एंड बिकॉज ऑफ दैट गैस प्रेशर भी क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है. द स्टार कॉन्ट्रैक्ट, और इसके बाद जब टेम्परेचर उसका क्या हो जाता है, डिक्रीज, एंड गैस प्रेशर डिक्रीज, देन इट स्टार्ट कॉन्ट्रैक्टिंग. तो वो क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाता है. एंड डेंसिटी इंक्रीजेज. when the density become very high when density become very high, some new type of pressures are generated which do not depend on the temperature of the gas. अब जब उसका डेंसिटी बहुत हाई हो जाता है तो नए टाइप के जो प्रेशर्स उसके अंदर जनरेट होते हैं और वो गैस के टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करते. इन सच केसेस गैस प्रेशर रिमेन कांस्टेंट even after energy generation stop completely and the temperature of the gas goes on decreasing. The stability of the star can remain intact forever, and this can be considered as the end stage of the star. So there are the three ways of evolution of stars depending on their initial masses. Thus, we can divide star in the three groups. The path of evolution and end stages for all stars in same group is same. Let us learn more about it. अब देखो, ये जो इवोल्यूशन है वो थ्री तरीके से होता है डिपेंडिंग ऑन द इनिशियल मास ऑफ दैट स्टार. उस स्टार के इनिशियल मास के ऊपर डिपेंड होता है. और ये कितने वे से होता है, थ्री वे से. बट जो सभी का एंड स्टेज होता है वो क्या होता है, सिमिलर होता है. नाउ फर्स्ट वन, एंड स्टेज ऑफ द स्टार हैविंग इनिशियल मास लेस देन 8 टाइम द मास ऑफ द सन. एंड स्टेज ऑफ द स्टार, एंड स्टेज, ओके, जो एंड का स्टेज है स्टार का और उसका जब इनिशियल मास क्या हो, लेस देन 8 टाइम द मास ऑफ द सन. ओके, the star in this group undergo huge expansion
and their radius increases by a factor of the 100 to 200 times. अब देखो, ऐसे स्टार जिनका मास 8 टाइम सन के मास से कम है, उनका एंड स्टेज कैसे होता है, उनका जो एंड की स्टेज कैसे होता है उसके बारे में लर्न कर रहे हैं हम लोग। तो जब इस टाइप के स्टार होते हैं जिनका मास सन के मास से 8 टाइम्स कम होता है, कितने टाइम कम होता है, 8 टाइम। So what happens in this type of the stars whose mass is less than 8 times of that mass of the sun? First they expand. Okay, what happens here? Expansion, and huge expansion takes place in them, and because of that the radius of that star increases by factor of the 100 to 200 times. अब इसका साइज जो होता है इस स्टार का, उसका जो रेडियस है इनिशियल रेडियस से 100 टू 200 टाइम उनका रेडियस इंक्रीज हो जाता है। इन दिस स्टेज दे आर कॉल्ड रेड जाइंट स्टार्स। अब इस स्टार्स को इस स्टेज में रेड जाइंट स्टार्स कहा जाता है। क्या बोला जाता है उनको? रेड जाइंट स्टार, बिकॉज व्हाट हैपेंस हियर, देयर साइज इंक्रीजेस 100 to 200 times of initial size. This name is given because of the large size and because of the fact that stars look reddish due to their lower temperature. And now yes, this name is given because of their large size, because now yes, size became 100 to 200 times to its initial size, and it looks red in color. It looks red in color, reddish color, because the temperature decreases. टेम्परेचर क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट इट लुक्स रेडिश। द साइज ऑफ ए रेड जाइंट स्टार in comparison to other type of star is shown in figure 19.2। किसमें शो किया है? 19.2 में। Okay, now see here the red giant star. Okay, page number 130, figure number 9.2, a comparison of sizes of the different star. Now see, the red giant star is shown at the bottom of this figure, and white dwarf and super giant star. Okay, here it is super giant star, and here it is red giant star, and here it is dwarf stars. Okay, clear now? Okay, तो ये फिगर में दिखाया है कि कैसे इनका क्या साइज है रेड जाइंट स्टार्स का। the end of the end of its evolution, these stars explode and their outer gas envelope is thrown out. The end of its evolution, इस स्टार के इवोल्यूशन के एंड में स्टार का एक्सप्लोजन होता है। क्या होता है? एक्सप्लोड हो जाता है, बर्स्ट हो जाता है, फट जाता है। एंड देयर आउटर गैस एनवलप इज थ्रोन आउट, और जिनके बाहर जो गैस का एनवलप होता है, मतलब उस स्टार के अराउंड जो गैसेस प्रेजेंट रहती, दे आर थ्रोन आउट, तो वो क्या हो जाती है? वहाँ से बाहर की तरफ पुस्ट आउट हो जाती है। द इनर्ट पार्ट The inner part contracts and its size becomes smaller to the size of the earth, और उनका जो अंदर का पार्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट होकर इनकी साइज जो है अर्थ के साइज के सिमिलर हो जाती है, उसके लगभग लगभग बराबर हो जाती है। एज द मास ऑफ स्टार इज मच हायर देन दैट of the earth and size is similar to that of the earth. Now the size of the star becomes the size of the earth, but the mass is still higher than the mass of the earth. The density in the star becomes very high. In this state, pressure due to electron in the star become independent of temperature and is able to balance the gravitational force forever. अब इसके बाद में जब साइज उनका अर्थ के इक्वल हो जाता है और डेंसिटी बहुत हाई, तो प्रेशर
ड्यू टू इलेक्ट्रॉन इन द स्टार बिकम इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। तो जो उनका प्रेशर है, प्रेशर वो टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट हो जाता है। द ग्रेविटेशनल फोर्स फॉर एवर इन दिस स्टेट द स्टार लुक्स वाइट एंड ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज इट इज कॉल्ड एज द ड्वार्फ। अब इसके बाद क्या होता है, इस यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद में उसका डेंसिटी बहुत हाई हो जाता है और जो इलेक्ट्रॉन की वजह से जो प्रेशर है और वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं रह जाता है। देन बैलेंस, तो क्या हो जाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स को ये बैलेंस हमेशा के लिए कर लेता है। इन दिस स्टेट स्टार्स लुक वाइट, और इस स्टेट में क्या हो जाता है, स्टार वाइट दिखाई देता है। किस कलर का दिखाई देता है, वाइट। एंड इट्स साइज बिकम वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द इनिशियल स्टेट। दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड एज द वाइट डॉर्फ। क्या बोला जाता है, वाइट डॉर्फ। वाइट का मतलब वाइट और डॉर्फ का मतलब क्या है, यस, शॉर्ट, छोटा। आफ्टर दिस इट्स टेम्परेचर कीप्स डिक्रीजिंग बट इट्स साइज एंड मास रिमेन अनचेंज फॉर एवर एंड सो वाइट डॉर्फ इज द एंड स्टेज ऑफ द स्टार इन दिस मास रेंज। अब जब टेम्परेचर डिक्रीज होते जाता है और साइज और उसका मास अनचेंज होता है, तो इस तरह से जो वाइट डॉर्फ जो है वो एंड स्टेज होता है इस रेंज के स्टार का। अब जो स्टार्स जिसकी साइज क्या है, एट टाइम्स एट टाइम्स स्मॉलर, एट टाइम स्मॉलर टू द मास ऑफ द सन, ऐसे स्टार जिनका मास एट टाइम्स कम है सन के मास से, वो जब उनका जो एंड स्टेज होता है, एंड स्टेज में वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वाइट डॉर्फ स्टार्स में। मतलब उनकी साइज जो है छोटी होते होते और छोटी हो जाती है और उनका जो कलर होता है वो वाइट हो जाता है, इसलिए उनको क्या बोलते हैं, वाइट डॉर्फ। और उनकी साइज भी बहुत ही छोटी हो जाती है। द एंड स्टेजेस ऑफ द स्टार हैविंग मास बिटवीन 8 to 25 टाइम्स द मास ऑफ द सन। ओके, नेक्स्ट कैटेगरी, end stage of the star having mass between 8 to 25 times the mass of the sun। ऐसे स्टार जिनका मास 8 to 25 टाइम सन के मास के होता, मतलब कि सन जो है, सन के कंपेयर में 8 से 25 टाइम्स इनका मास ज़्यादा होता है। ओके, इनका मास क्या होता है, अर्थ सन के मास से 8 to 25 टाइम ज़्यादा होता है। मतलब ऐसे स्टार का जो मास है वो ज़्यादा है सन के मास से, और वो भी कितने टाइम, 8 to 25। दिस स्टार्स आल्सो गो थ्रू द रेड जाइंट स्टेज। रेड जाइंट स्टेज में ये भी जाते हैं। तो व्हाट हैपेंस इन द रेड जाइंट स्टेज, द साइज ऑफ द स्टार्स बिकम 100 to 200 times to the yes initial size। तो ये दे also goes through the red giant stage and later, और उसके बाद through the super giant stage during which their size में increases 1000 time। अब यहाँ पे इसके बाद में रेड जाइंट स्टेज के बाद उनका जो साइज होता है 1000 टाइम इंक्रीज हो जाता है इनिशियल साइज से। द ह्यूज द ह्यूज एक्सप्लोजन द ह्यूज एक्सप्लोरन, तो बहुत ही ये क्या है, बड़ा एक्सप्लोजन होता है, कॉल्ड द सुपरनोवा एक्सप्लोजन। तो ऐसे एक्सप्लोजन को बोला जाता है सुपरनोवा एक्सप्लोजन। तो व्हाट इज द सुपरनोवा एक्सप्लोजन, द स्टार्स हैविंग मास मोर दैन 8 to 25 times to the mass of the sun, they undergo the red giant stage in that the size of that star increases 100 to 200 times। But yes, such type of the star their size increases to 1000 times, and because of that there is a huge explosion, and this explosion is called as the supernova explosion, which occurs at last is very powerful and so much energy is given off that we can see the star during the day also। और जब ये एक्सप्लोजन होता है तो बहुत ही ह्यूज एनर्जी निकलती है और ये हम
इस एनर्जी को डे टाइम में भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, मतलब दिन में इतनी सन की ब्राइट लाइट होने के बावजूद भी इस एक्सप्लोजन की लाइट हम देख सकते हैं। The central portion, which is left behind after the explosion, contract and its size become as small as about 10 किलोमीटर। जो इसका सेंट्रल पोर्शन होता है वो क्या होता है, बचा हुआ उसका सेंट्रल पोर्शन जो बच जाता है एक्सप्लोजन के बाद, वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, सिकुड़ जाता है, श्रिंक हो जाता है, एंड इट साइज बिकम स्मॉलर एज अबाउट 10 किलोमीटर, और उसकी जो साइज होती है डिक्रीज होके 10 किलोमीटर एस रेडियस की हो जाती है। इन दिस स्टेट द स्टार्स आर completely मेड अप ऑफ न्यूट्रॉन एंड कॉल्ड न्यूट्रॉन स्टार। और इन दिस स्टेट, इस स्टेट में जो स्टार होता है वो कम्प्लीटली न्यूट्रॉन से बना होता है, दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द न्यूट्रॉन स्टार। The pressure of this neutron is independent of the temperature and is capable of balancing the gravitational force forever। अब जो प्रेशर होता है इस न्यूट्रॉन का वो टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट होता है, मतलब वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता नहीं है, एंड दिस इज कैपेबल ऑफ बैलेंसिंग द ग्रेविटेशनल फोर्स फॉर एवर। तो ये हमेशा के लिए ग्रेविटेशनल फोर्स को बैलेंस करने के एबल हो जाता है। न्यूट्रॉन स्टार इज द एंड स्टेज ऑफ दिस स्टार। तो इस तरह के स्टार का जो एंड स्टेज है वो न्यूट्रॉन स्टार्स होते हैं, मतलब जो भी स्टार्स है जिसकी साइज 8 to 25 टाइम्स सन के साइज से है, उनका कन्वर्जन फाइनली इस न्यूट्रॉन स्टार के फॉर्म में होता है। बिकॉज ये जब वो बचा हुआ पार्ट होता है वो किसका बना हुआ रहता है, ओनली एंड ओनली न्यूट्रॉन पार्टिकल्स का बना होता है, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज द न्यूट्रॉन स्टार। तो एंड स्टेज इनका ये न्यूट्रॉन स्टार्स है, और जिसका ये साइज 8 टाइम्स लेस होता है सन के साइज से, ये सॉरी मास जो है 8 टाइम्स क्या होता है, कम होता है, उनका जो एंड स्टेज है वो वाइट डॉर्फ है, मतलब वो वाइट डॉर्फ ये स्टार के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हो, एज द साइज ऑफ द वाइट डॉर्फ इज सिमिलर टू दैट ऑफ द अर्थ। अब जो वाइट डॉर्फ है उसकी जो साइज है अर्थ के साइज के ही जैसी है, देयर डेंसिटी इज वेरी लार्ज, बट जो वाइट डॉर्फ स्टार है उसकी डेंसिटी बहुत ही हाई होती है। वन स्पूनफुल मटेरियल ऑफ द वाइट डॉर्फ विल वेट अ फ्यू टन्स। अब इसकी डेंसिटी इतनी हाई होती है कि अगर एक स्पूनफुल मटेरियल ले लिया उस वाइट डॉर्फ प्लैनेट स्टार का, एक स्पूनफुल, और सोचे इमेजिन करो कि एक चम्मच सिर्फ उसका मटेरियल अगर आप ले लेते हो तो वो उसका जो मास होगा वो कई टन्स में होगा, उसका जो वेट होगा वो क्या होगा, कई टन्स में, उसकी डेंसिटी इतनी हाई होती है। As neutron stars are much smaller than the white dwarf, neutron stars are the much smaller than white dwarf. Their density is very higher, and one spoonful material of this star will weigh as much as the weight of the all living beings on the earth. ओके, यू कैन इमेजिन। अब जो जो हम लोगों ने एंड स्टेज किसका देखा है, ऐसे स्टार का जिसकी साइज 8 to 25 टाइम्स होती है, और जब वो कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसकी साइज कितनी हो जाती है, उसकी डायमीटर 10 किलोमीटर की, इतना वो ये क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट होके इतनी साइज उसकी रिड्यूस हो जाती है। और जब हम वनली अगर उस स्टार का अगर हमने एक स्पूनफुल मटेरियल लिया, मतलब उसमें से अगर हमने क्या किया, एक चम्मच सिर्फ मटेरियल लिया, तो क्या हो जाएगा, उसका वेट जितने अर्थ पे जितने अर्थ पे लिविंग थिंग्स है, उन लिविंग थिंग्स का जितना वेट है उतना सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, एक चम्मच मटेरियल का वेट होगा, किसका, जिसका साइज 8 to 25 टाइम ज़्यादा होता है सन के साइज में, और जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रॉन स्टार्स। किस क्या बोलते हैं, न्यूट्रॉन स्टार, इतना ज़्यादा उनकी डेंसिटी होगी। ए स्टार इन आवर गैलेक्सी एक्सप्लोडेड अबाउट 7005 ईयर बैक। अब जो अपनी जो गैलेक्सी है
अपनी जो गैलेक्सी है मंदाकिनी और मिल्की वे, जिसको हम क्या बोलते हैं, मंदाकिनी और मिल्की वे, इसमें एक स्टार का एक्सप्लोजन हुआ था 7,500 ईयर के पहले। ओके, अब से कितने साल पहले, 7,500 साल पहले उसका एक्सप्लोजन हुआ था। एज द स्टार इज अबाउट $6,500 लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम द अर्थ। अब ये जो स्टार था हमारे अर्थ से 6,500 लाइट ईयर के डिस्टेंस पे था। द लाइट एमिटेड इन द एक्सप्लोजन took 6,500 ईयर टू रीच अस। और जो वहाँ से लाइट एक्सप्लोड हुआ था वो एक्सप्लोजन होने के बाद 6,500 ईयर के बाद अर्थ तक पहुँचा था। इट वॉज फर्स्ट सीन ऑन द अर्थ बाय द चाइनीज इन ईयर 1054। और ये पहला ऑब्जर्वेशन चाइनीज़ लोगों ने किया था 1054 में। It was so bright that it could be seen during the day also for the 2 years। और ये इतना ब्राइट था वो लाइट एक्सप्लोजन का कि ये दिन में भी लगातार 2 सालों तक दिखाई दिया। आफ्टर 1,000 year of the explosion, the gases emitted during the explosion are seen to be expanding with velocity higher than 1,000 किलोमीटर पर सेकेंड। 1,000 ईयर के बाद, एक्सप्लोजन के बाद, जब एक्सप्लोजन हुआ उसके 1,000 साल के बाद भी जो गैसेस वहाँ से एमिट हुए थे, जो गैसेस वहाँ से इवॉल्व हुए थे, निकले थे, वो जो है गैसेस 1,000 किलोमीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से एक्सपांड हो रहे थे, फैल रहे थे। Now the end stage of the star having mass larger than 25 times the mass of the sun। अब हम लोग ऐसे स्टार का एंड स्टेज पढ़ रहे हैं जिसका मास 25 टाइम्स सन के मास से होता है। These stars evolve like the star in the second group, but also after the supernova explosion, no pressure is capable to balance their huge gravitational force and they कंटिन्यू कॉन्ट्रैक्टिंग फॉर एवर। ओके, अब देखो इस टाइप के स्टार जिनका मास क्या है 25 टाइम्स ज़्यादा होता है अर्थ सन के मास से, तो नो प्रेशर इज कैपेबल ऑफ बैलेंसिंग देयर ह्यूज ग्रेविटेशनल फोर्स एंड दे कॉन्ट्रैक्टिंग फॉर एवर। तो ऐसा कोई भी गैस प्रेशर कैपेबल नहीं रह जाता है कि उसके ग्रेविटेशनल फोर्स को क्या करे, वो बैलेंस कर सके। एज द साइज बिकम स्मॉलर their density and their gravitational force increases tremendously। जैसे जैसे वो क्या होता है उसकी साइज स्मॉलर होते जाती है, डेंसिटी और ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज होता है। ऑल नियर बाई ऑब्जेक्ट गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड दिस स्टार एंड नथिंग कैन कम आउट ऑफ देम। और इनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है कि जो भी उनके आजू बाजू में थिंग्स होते वो सभी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं, और जिसको भी वो अट्रैक्ट करते वो उनसे दूर नहीं जा सकता है, वो हमेशा के लिए उनसे क्या हो जाता है, ये उसी पे प्रेजेंट हो जाता है। ऑल्सो एनी लाइट फॉलिंग ऑन दिस स्टार डज नॉट गेट रिफ्लेक्टेड एंड गेट्स एब्जॉर्ब इनसाइड द स्टार। और जो भी लाइट इनके ऊपर फॉल होती है वो लाइट बिल्कुल रिफ्लेक्ट नहीं होती है, वहाँ से टकरा कर वो क्या है, रिटर्न बैक नहीं होती है, और उसके जगह पे क्या हो जाती है, वो उसी स्टार के अंदर एब्जॉर्ब्ड हो जाती है। दस वी कैन नॉट सी द स्टार एट ऑल बट कैन प्रोबेबली सी ए माइन्यूट ब्लैक होल इन इट्स प्लेस। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, ये स्टार इतने साइज में छोटे हो जाते कि हम लोग इनको देख नहीं सकते, और इतने छोटे साइज हो जाते इनको हम देख नहीं सकते, और जो माइन्यूट ब्लैक होल है उसी प्लेस में ये दिखाई देते।
This end stage of the star is therefore called the black hole. तो ऐसे ही स्टार के एंड स्टेज को हम ब्लैक होल कहते हैं. Thus we have seen that depending on the mass there are the three paths of evolution and three end stage of the star. These are shown in the following table. Now see the initial mass less than 8 times the mass of the sun. The end stage of the star is the white dwarf, and the between 8 to 25 times of the mass of the sun, neutron star, and mass greater than 25 times of the mass of the sun, yes, black hole. Okay student, understood कि how the end stage of the star takes place, कैसे वो होता है, what happens and what are the changes takes place during the end stage. जब इनका एंड स्टेज होता है तो क्या क्या चेंजेस होता है वो, तो सभी के जो एंड स्टेज होते हैं ऑलमोस्ट सेम होते हैं. तो क्या होता है पहले स्टार्टिंग में, पहले वो एक्सपांड होते हैं. क्या होते हैं हर एक स्टेज में, चाहे वो क्या है वाइट डॉर्फ का एंड स्टेज हो या न्यूट्रॉन का एंड स्टेज हो और या ब्लैक होल का एंड स्टेज हो. तो फर्स्ट द स्टार एक्सपांड्स, क्या हो जाता है, स्टार एक्सपांड हो जाता है. अब जो कुछ स्टार 100 to 200 टाइम एक्सपांड होते तो सम एक्सपांड टू द 1000 टाइम. एंड व्हेन दे एक्सपांड, आफ्टर एक्सपांडिंग देयर इज द बस्टिंग ऑफ दैट स्टार. तो क्या हो जाता है, बस्टिंग होता है, वो फट जाते हैं. एंड आफ्टर द बस्टिंग द डेंसिटी इंक्रीजेज एंड टेम्परेचर डिक्रीजेज. उसकी वजह से क्या होता है, डेंसिटी इंक्रीज होता है और टेम्परेचर डिक्रीज होता है. एंड बिकॉज ऑफ इंक्रीज डेंसिटी द साइज ऑफ द डिक्रीजेस. उसके बाद क्या हो जाता है, साइज उसकी डिक्रीज हो जाती है और जो उनकी डेंसिटी होती है वो बहुत ही हाई हो जाती है. ओके स्टूडेंट, नाउ यस अनम्यूट योर सेल्फ एंड इफ यू हैव एनी डाउट आस्क टू मी. यस स्टूडेंट. Is no one having any doubts? Now I am ending the meeting.